मुस्कान मैम। Yes, sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल a very good afternoon to JC Sekpura team, and I have we have already shared in your WhatsApp group related to this workshop, this session. Because of that, this session is very important for each and everyone. So first of all, I want to confirm from GC Sekpura, from concerned faculty members or TQSers or any. Sir, all the students are belong from CSIT departments. Okay. So we have mentioned about today's session. This session is going to conduct mastering research writing, your guide to publications. Because of that, nowadays research writing is very important topics. Because of that, all the students who belong from technical backgrounds or non-tech backgrounds, उनका इंटेंशन होता है कि वे रिसर्च राइटिंग करें, वो शोध पत्र लिखें, उनका पेपर IEEE में पब्लिश हो, स्कोपस में पब्लिश हो, साइंस हब में पब्लिश हो या फिर गूगल स्कॉलर पे वो पब्लिश रहे। ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है। तो उन सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं थ्रू गेटमेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड मास्टरिंग रिसर्च राइटिंग, your guide to publications. Means if you want to become a writer or researchers as a students, then this session is too much beneficial for you all. First of all, I have mentioned here a comprehensive roadmap to navigating the world of academic research, from understanding different publications venues to leveraging powerful tools that will elevate your scholarly work. I want to ask the questions as what are the major difference between students and scholars? Anyone? What are the difference between students Me and too. scholars? Dear participants from your sides, you all are the BTech students. But PhD holders, PhD pursuing students, we can call to him or them as PhD scholars. Are you getting points? वीडियो कहाँ से ऑफ होते हैं? जो रिसर्च के लिए स्पेशली काम करते हैं उन्हें हम लोग स्कॉलर की उपाधि दे सकते हैं, स्कॉलर बोल सकते हैं। लेकिन वहीं मास्टर होल्डर तक भी जो होते हैं वो चाहे एमटेक भी करें, सपोज डेट आप सब बीटेक होल्डर्स हैं, बीटेक परसिंग स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर योर बीटेक डिग्री आप लोग इनरोल करेंगे एमटेक के लिए, तो फिर आप स्टूडेंट्स ही कहलाएंगे। लेकिन जैसे आप पीएचडी में इनरोल होंगे, आप फुली जो है डॉक्टरेट के लिए आप प्रोसीड होते हैं, मीन्स परस्यू करने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे रिसर्च वर्क करना 100% मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन अभी जो है वी आर इन द एरा ऑफ जेनेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एरा, so we have a lot of tools, a lot of technologies, just we have need to explore that tools and technology and utilize our research works. So this session will be too much beneficial for you all, and मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस सेशन में कंप्लीटली एक रिसर्च पेपर मैं अभी आप सबके समक्ष में लिख करके भी दिखाऊंगा, और कंप्लीटली IEEE पे कैसे पब्लिश की जाती है उस सब का प्रॉपर गाइड मैं प्रोवाइड करूंगा। सो जस्ट विद इन 1 hours. First of all, we have a questions, means what is a research, what is the research writing. So according to these definitions, I have mentioned here the systematic process of investigating a topic, gathering evidence, and presenting, finding a clear, structured and objective manners. Means हम एक एविडेंस गैदर करते हैं, हमारे पास में जो भी
जो भी हमारे पास में जो एविडेंस होती है वो बिगिनिंग टू एंड होती है, मीन्स एक प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे में होती है, एक एल्गोरिथमेटिक फॉर्म में होती है। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के। रिसर्च की जैसे हम बातें करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है रिसर्च मीन्स शोध। If you want to become a researcher, then you have need to know about definitions of that, means हमें किसी भी थिंग्स में किसी भी डोमेन्स में हमें कुछ स्टार्ट करनी होती है तो पहले में डिफिनेशन से ही आगे प्रोसीड होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द रिसर्च एम? if you want to become a research, if you want to become a publisher, then this session is too much beneficial for you all. What are the aim to research? Aim to contribute new knowledge, validate existing theories, or solve problem within a specific academic discipline. Here, I have mentioned here academic disciplines means what? You all are the BTech holders, and as a BTech holders, आप सबके पास में academic discipline की हम जो बातें करेंगे, जैसे आपके पास में अगर यहाँ पे कोई 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ज्वाइन है क्या फ्रॉम दिस से पूरा? एनीवन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन? Please confirm. Any participants are belong from final semesters of BTech? Then please respond. Okay, no problem. Means okay. So I have mentioned here aim to contribute new knowledge, validate existing theories, or solve problem within a specific disciplines. स्पेसिफिक डिसिप्लिन एकेडमिक का सिंपली मीनिंग होता है कि आपका बीटेक को 4 ईयर के लिए रखा गया है, 4 ईयर में 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। तो आप ऐसा नहीं कि आप कहीं से उसमें 9 सेमेस्टर ऐड कर देंगे या 7 सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका पहले से ही अपना इसका रूल्स जो है फिक्स है, इसका जो स्पेसिफिक टाइमलाइन डेडलाइन ऑल फिक्स है। सेम यहाँ भी रिसर्च राइटिंग के लिए भी ये फिक्स होना आवश्यक हो जाती है। सो इट्स अ सिंपल डिफिनेशन ऑफ रिसर्च राइटिंग। रिसर्च अब रिसर्च राइटिंग का डिफिनेशन हमें पता चला, मीन्स हमें एक एविडेंस गैदर करनी है। तो मैं एक एग्जांपल्स ऑल टाइम्स बोलता हूँ जैसे मैं रिसर्च की रिगार्डिंग डिस्कशन करनी होती है। एज हु इज द फाउंडर, हु इज द इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर्स, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, देन सभी लोगों को पता है चार्ल्स बेबेज। बट चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर की निर्माण हो चुकी थी, कंप्यूटर बन चुकी थी। बट उन्होंने जो है एक प्रॉपर वे में उन्होंने थ्योरी सिस्टमेटिक प्रोसेस उन्होंने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है एविडेंस के तौर पे नहीं दिया, गैदर नहीं किया, जिसके कारण लोग उन्हें नहीं जानते हैं। थॉमस एडिसन के बल्ब के पहले बल्ब का आविष्कार हो चुकी थी, लेकिन थॉमस एडिसन को नाम लिया जाता है ऑल टाइम्स, कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज का नाम लिया जाता है ऑल टाइम्स। इसका रीजन ये हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो है एविडेंस गैदर किया, इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, इन्होंने एक प्रॉपर में एक थ्योरी प्रोवाइड किया एक वेल मैनर्स के साथ में, इसलिए इन लोगों का नाम ली जाती है। सो आप भी अगर कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर वे में आपके पास में एविडेंस होना आवश्यक है। ओके, आई हैव मेंशन हियर टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। सो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना जो है डिफिनेशंस, यूनिवर्सल डिफिनेशंस एज जर्नल पेपर्स। डियर, आप में से किसी का कोई जर्नल पेपर्स पब्लिश है क्या किसी भी पेयर्स में या किसी भी इंडेक्सिंग में? एनीवन? विजेता आरी भैया, विजेता, सुमन कुमारी, शिखा प्रिया, रोहित कुमार। So anyone, you should respond properly. I have mentioned here journals. Journals is the types of a research paper. If you want to write a journal papers, then this session is too much important and beneficial for you all. And आज की सेशन में मैं जस्ट ये जो पीपीटी है 10 मिनट्स में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जस्ट आफ्टर डेट जो है इसका लैब भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ एआई टूल्स का मैं यूज करूंगा और उस एआई टूल्स का यूज करके हम एक जर्नल पेपर्स यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो जो जर्नल पेपर्स हम लिखते हैं, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ जर्नल पेपर्स, व्हाई जर्नल पेपर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, फॉर आवर रिसर्चर्स आल्सो। आई हैव मेंशन हियर peer reviewed journals, examples and key features.
Examples of journal papers as Nature, Science, the Lessons, IEEE, transactions on pattern analysis and machine intelligence and something like that. I have mentioned here peer-reviewed journals as the gold standards for scholarly communications. Articles undergo rigorous review by experts in the field before publications. These all are important. I have also mentioned here high impact, long-term visibilities and credibility within the academic community. Means if you want to become a researcher, आप अपना जर्नल पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके बिहाफ पे आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, आपकी जो स्टैंडर्ड है, आपकी प्रोफाइल की जो स्टैंडर्ड है, पूरे ट्रिपल डब्ल्यू में एज अथर जाने जाने लगती है. ओके, सो I have also mentioned here one and other types of research paper that is called conference. Conference is the simple in comparison than journals. Today we are going to write a journal papers. So you have need to connect with us. I have mentioned here conference proceeding. Examples, key features and something like that. What is what are the proceeding of a conference paper? Means paper presented at academic conference often of faster route to dimensions than journals. Means we can say that in simple words, if you want to, you have two options for publish a paper as journals and research papers. If you want to, आप चाहते हैं कि आपका पेपर जो है जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए, देन यू कैन सेलेक्ट रेफरेंस कॉन्फ्रेंस पेपर. एंड कॉन्फ्रेंस के तौर पे आपकी कॉलेज में भी ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एज नेशनल कॉन्फ्रेंस. फिर आपकी यूनिवर्सिटी में भी कंडक्ट होता होगा मे बी एज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स है एज न्यूरल पीएस, ICML, ACL, SIGA, and something like that. These all are the examples of conference paper. And also we can mention as BEU, Bihar Engineering University, International Conference and something like that. And your आपकी कॉलेज भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती रहती है, मे बी आपके कॉलेज में भी हुआ हो. ओके, I have also mentioned here top 10 indexing database where to find and be found. These top 10 indexing are universally means globally famous है, जिसमें सबसे फर्स्ट रैंकिंग जो डिजर्व करता है वह है स्कोपस. मीन्स इफ यू वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर, इफ यू वांट टू पब्लिश अ पेपर ऑन स्कोपस इंडेक्सिंग, मीन्स स्कोपस डेटाबेस में स्कोपस इंडेक्सिंग में अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होती है तो आपका जो अथर का है, आपका स्टैंडर्ड्स, आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. सेकेंड नंबर जो डिजर्व करता है वो है IEEE एक्सप्लोर. तो आज हम लोग जो रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं वो IEEE एक्सप्लोर के लिए होने वाली है. वेब ऑफ साइंस, पबमेड, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, गूगल स्कॉलर, ABS होस्ट, जस्ट और डायरेक्ट साइंस, स्प्रिंगर्स एंड समथिंग लाइक दैट. These all are the top 10 indexing database. इसके रिगार्डिंग मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जैसे अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है सी, तो C++ आपके लिए आसान हो जाती है. C++ आप जैसे लर्न कर लेते हैं, कुछ उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जावा आपके लिए आसान हो जाती है. सेम अगर आप IEEE के लिए पेपर रिसर्च पेपर लिख देंगे तो आपके लिए स्कोपस भी लिखना, स्कोपस पे भी पब्लिश करना आसान हो जाएगी. ठीक है, तो आज का हमारी जो है डोमेन, आज का हमारी जो ऑब्जेक्टिव है एक रिसर्च पेपर लिखना और IEEE का टेम्पलेट पे ही लिखना. ओके, I have also mentioned here free AI tools for research assistants. What is the meaning of this? I have also told to you in the start of the session as today we are going to use a lot of free AI tools for our research work, as you have options as ChatGPT, Perplexity AI, Elicit, Consensus, Gemini and something like that. These all are the AI tools. DeepSeek also. तो हम लोग DeepSeek का यूज करके रिसर्च पेपर अपना कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, I have also mentioned here overleaf. What is the meaning of overleaf here? Overleaf just like a
just like editors, just like editing tools, where we can हम लोग अपने पेपर का जो पैराग्राफ उसका होता है एक वे में अरेंज करना, लेटेक्स का हमें सीखने की जरूरत होती है, लेकिन लेटेक्स सीखना जो है बहुत टॉप होती है, उसके करस्पॉन्ड में हम लोग ओवरलेप का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में रिसर्च पेपर लिखना, 1 आवर्स में रिसर्च पेपर लिखना, 30 मिनट्स में रिसर्च पेपर लिखना है हमें, तो थोड़ा हमें टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, कुछ टूल्स का यूज करना पड़ेगा। नहीं तो पता चलेगा जैसे पहले की अपना बातें होती थी, एक डिजर्टेशन लिखना है, एक हमें कोई आर्टिकल्स लिखना है, एक हमें कोई कोई डिजर्टेशन बनाना है, थीसिस बनाना है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगती थी। तो मैं बताना चाहूंगा, इफ यू वांट टू राइट जर्नल आर्टिकल्स, thesis, dissertations and conference paper, then Overleaf is the best example for this work. What is Overleaf? Overleaf, a web-based collaborative latex editor that streamlines the process of writing technical and scientific documents. And I have also mentioned the benefits of Overleaf. First one, that is called real-time collaborations with team members. No complex installations required. Because of that, if you want to write your research paper using latex, then you have need to install first as MS Office. But if you want to use Overleaf, then you can complete your same work through online without installations. So it's no complex installations required. And built-in version controls also rich template library for various paper types. If you want to write conference paper, if you want to write dissertations, if you want to write thesis, if you want to write journal articles, then for all the works, for these all works, Overleaf is the best. So I have select Overleaf here. Any queries related to Overleaf, then you can ask from me. Dear participants, Mr. Balaram Kumar, are you here? Yes, sir. What's your semester right now? Means current semester? 8, sir. 8, very nice. तो अभी आपके यहाँ रिसर्च राइटिंग की भी काम चल रही होगी, है ना? तो रिसर्च राइटिंग पे काम आप कर रहे होंगे, ओवरलेप के रिगार्डिंग आपको कुछ आइडिया है क्या? चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। क्या चीज? चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी से तो हमें कंटेंट तो प्रोवाइड कर देगा, बट उसे हमें अरेंज करने के लिए, टेम्पलेट के लिए हमें तो कुछ हमें एमएस ऑफिस में वर्ड यूज करना पड़ेगा, या तो फिर ओवरलेप यूज करना पड़ेगा, या तो फिर हमें लेटेक्स यूज करना पड़ेगा, यस है सर, ना? कैनवा यूज कर रहे हैं। हाँ, तो इस टाइप से और भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ओवरलेप का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जो जर्नल आर्टिकल्स है, थेसिस है, डिजर्टेशन है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, ये डिजर्टेशन का नाम आप लोग सुने हैं क्या? सुने होंगे आप लोग, जो है एक रिसर्चर्स हैं और एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मे बी यू लिसन एंड अवेयर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स। ओके, सो एंड व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन थेसिस एंड डिजर्टेशंस? एनीवन? डियर एनीवन? What are the major difference between thesis and dissertation? आप लोग यस नो बोल सकते हैं। इट्स अ वर्कशॉप, इट्स अ सेशन, नॉट दैट योर क्लासरूम। If you have answers of these questions, then you can respond yes, otherwise no भी बोल सकते हैं, चलेगा। हेलो मिस्टर बलराम। नो सर। नो बोलनी चाहिए, मैं सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपके कॉलेज में कभी ऑफलाइन मोड में विजिट नहीं किया हूँ, मैं आप लोग को फेस टू फेस मैंने कभी इंटरेक्शन हमारी नहीं है, ये जस्ट ऑनलाइन इंटरेक्शन हमारी हो रही है। तो इसमें जो है आपको बताना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता है कि बलराम को जानकारी है, या बलराम जैसे और उनके बैचमेट्स हैं, उनके सीनियर हो सकते हैं, उनके जूनियर हो सकते हैं, उनके कंसर्न फैकल्टी हो सकते हैं। देखिए, कंसर्न फैकल्टी तो ऑलराउंडर है, उन्हें सब चीज आती है, लेकिन स्टूडेंट्स में जो है कुछ लोग आ सकती है और कुछ लोगों को में भी नहीं आती हो, तो आपको यहाँ पे पूछना है। ओके,
सो मैं थीसिस और डिसर्टेशन की रिगार्डिंग बताना चाहूंगा और जर्नल्स की रिगार्डिंग भी बताना। जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस की रिगार्डिंग तो हमने डिस्कशन कर ही दिया है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा स्टार्टिंग में ही जर्नल पेपर्स, तो जर्नल पेपर्स एज IEEE पे जो पेपर आप पब्लिश करने जाएंगे उसके लिए आपको एक पेपर आपने पहले लिखेंगे अच्छे टेम्पलेट में बेस्ड वे में, फिर उसको जो है आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, मीन्स पब्लिश के लिए सबमिट करेंगे। फिर अगर वहाँ की टीम उसको वेरीफाई करती है एज प्लेगरिज्म उसमें है कि नहीं, प्लेगरिज्म फ्री होनी चाहिए, कोई प्लेगरिज्म नहीं हो, उसमें जो है उसके टेम्पलेट को आपने 100% फॉलो किया, उसके इंस्ट्रक्शंस को आपने 100% फॉलो किया हुआ, उसका टेक्स्ट स्टाइल कैसा हो, मीन्स फॉन्ट स्टाइल कैसा हो, पैराग्राफ का अपना कितना गैप आपने रखा हुआ है दोनों के बीच में, फिर आपने उसमें रेफरेंस लिखा या नहीं लिखा है, ओवरऑल जो उसका सिस्टमेटिक वे है उसको आपने फॉलो किया या नहीं किया। अगर उसमें कहीं भी कुछ भी एरर होती है तो फिर जो वहाँ से रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो है रिव्यू करने के लिए जर्नल पेपर को पब्लिश करने के लिए थोड़ी सी टाइम लगती है, मे बी 3 डेज भी हो या मे बी 6 मंथ भी हो सकता है। जब तक 100% नहीं होगा तब तक जो है रिजेक्शन ही मिलती है। ठीक है, लेकिन वहीं जैसे हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है कॉन्फ्रेंस पेपर का, तो कॉन्फ्रेंस पेपर कोई कॉलेज कंडक्ट कर सकती है, कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है, कोई इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर सकती है। वहां पे आप जाते हैं, सिंपली आपका पेपर होता है, आपका अब्स्ट्रैक्ट होता है, आप वहां पे सबमिट करते हैं, वहां का लोकल जो रिव्यूअर होते हैं एक्सपर्ट वो उसको रिव्यू करते हैं और उसके बिहाफ पे वो सिलेक्ट भी कर लेते हैं। उसमें कुछ कमियां भी होती है, वो अपने बेसिस को सही करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, आपका कॉन्फ्रेंस पेपर जो है पब्लिश वो कर देते हैं अपने बिहाफ पे। तो ये सिंपल चीज है। सो जर्नल पेपर्स क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर थोड़ा आसान है। सेम हम बातें करते हैं दो और कीवर्ड्स हमने जो पूछा थेसिस एंड डिजर्टेशन को लेकर के, तो थेसिस जो है इंटरनेशनल वर्ड्स है, एंड इंटरनेशनल इन द सेंस की फॉरेन आउट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को ही, जिसमें सर्टिफिकेट भी अपना सब रहता है। जैसे 9 पेज का आप लोग सर्टिफिकेट भी बनाते होंगे एज फ्रंट कवर पेज, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऐसे बनाते हैं ना, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल सर्टिफिकेट, फिर उसमें Yes, sir. प्रोजेक्ट थीसिस प्रिपरेशन, लास्ट भी अपना बैक कवर पेज बनाते हैं। जो 9 पेज का जो आपने बनाते हैं और उसमें प्रोजेक्ट भी अपने मेंशन करते हैं, मींस टेबल ऑफ कंटेंट टू लास्ट कंक्लूजन तक, इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, कंक्लूजन्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल आप इतना जो वर्क करते हैं उसको इंडिया में बोली जाती है डिजर्टेशंस, लेकिन यस, बट आउट ऑफ इंडिया इन सारे सेम कंटेंट को थीसिस के तौर पे जानी जाती है। ओके, सो आई हैव आल्सो मेंशन हियर DeepSeek advanced research. Because of that, today we are going to use DeepSeek AI for writing our first research paper and overleaf. What is DeepSeek? DeepSeek AI is the platform designed to help researchers discover, analyze, and visualize scientific life literatures. मैं आप सबको एक सिंपल एक स्टेटमेंट शेयर करना चाहूंगा एज if you want to write a research papers then you have need to read a research paper related to that domains। एज आप एक रिसर्च पेपर लिखने जाते हैं तो आपको 10, 15, 50, 200 रिसर्च पेपर आपको गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बिहाफ पे आप एक नए रिसर्च पेपर आप लिख पाएंगे। सो आपको एक साइंटिफिक लिटरेचर भी करना पड़ेगा। इज इट करेक्ट और नॉट? After next, I have also mentioned here features as advanced search capabilities, trend analysis, situations mapping, and identifying emerging research areas. What are the meaning of this? Means while आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपका पहले एरियाज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें किस एरियाज में रिसर्च लिखनी है। एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकती है, मशीन लर्निंग हो सकती है, या फिर जो है आप डीप लर्निंग की ओर प्रोसीड कर सकते हैं, डेटा साइंस। जिस फील्ड में जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं उस डोमेन से रिलेटेड आपको पेपर डाउनलोड करने होंगे और उसे स्टडी करने होंगे। आफ्टर स्टडी आपको रिसर्च लेवल का स्टडी करने होंगे, एक साइंटिफिक लिटरेचर आपको करने होंगे। एज कोई फार्मूला उसमें है तो उस फार्मूला को जो है कैसे आया है, उसका क्या मीनिंग्स है, एवरीथिंग्स आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने होंगे, फिर आप न्यू रिसर्च पेपर के लिए काबिल होते हैं और उसको आप राइट कर पाते हैं। बट इतना जो है आपको दिमाग लगाना है, इतना ये सब तो जो जेन्युइन फैक्ट्स है उस फैक्ट को समझना है, उसको अंडरस्टूड होना है, फिर हमें जो है प्रोसीड करना है राइटिंग के लिए। आई हैव आल्सो मेंशन हियर यूज केसेस एज अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप ऑफ अ रिसर्च फील्ड एंड आइडेंटिफाइंग key papers and authors also. Okay,
I have mentioned here crafting your research papers as key elements. If you want to think about how we can write our first research paper, then before writing you have need to mention, you have need to follow these all the key elements. As first one, that is title. जैसे आप लोग अभी अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, रिसर्च डिसर्टेशन कर रहे होंगे अपने कॉलेज का, तो उसके लिए आपके जो सुपरविजन होंगे, जो आपके गाइड होंगे, वो सर आपको पहले एक टाइटल प्रोवाइड किए होंगे। टाइटल प्रोवाइड करने से पहले आपसे पूछे होंगे कि आपको जो है कौन सी डोमेन में रिसर्च करनी है। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। तो आपसे पूछा गया होगा कि हाँ, आपसे पूछा गया होगा, आपके सुपरवाइजर आपसे पूछे होंगे कि आपको इस डोमेन में रिसर्च करनी है एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग, आप बताए होंगे। उसके बिहाफ पे उन्होंने टाइटल आपको प्रोवाइड किए होंगे, और ऐसा टाइटल प्रोवाइड किए होंगे जो बिल्कुल यूनिक हो। उस नाम से कोई रिसर्च पेपर पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में सेम नहीं हो सकती है। इज इट करेक्ट और नॉट? सेम हो ही नहीं सकती है, डिफरेंस होती है। आफ्टर नेक्स्ट आपको जो है, जब आप टाइटल बना लेते हैं, फिर उसको आपको एक ब्रीफ समरी बनाना पड़ता है इंटायर पेपर के लिए, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आफ्टर नेक्स्ट आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। फिर उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कितना मेथोडोलॉजी उसमें यूज किया है, एज एल्गोरिथम के फॉर्मेट में स्टेप 1 2 3 4, जो उसमें आपने मेथड्स यूज किया है उसको फाइंड आउट, उसको रिजल्ट लाने के लिए वो आपको मेथोडोलॉजी इसमें दिखाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च पेपर, रिसर्च राइटिंग इज द begin to end structures. Okay. After next, you have mentioned, I have also mentioned here results as present the finding objectively. What is the meaning of this? और जब आप रिसर्च पेपर लिखने जा रहे होते हैं तो आपको एक रिजल्ट भी इसमें प्रूफ के तौर पे वो प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर एविडेंस। आफ्टर नेक्स्ट डिस्कशंस, कंक्लूजन्स एंड रेफरेंस आल्सो। आई इस मैंने इसमें एक मिसिंग हो गया है वो डिटेल्स, जिसका नाम होता है रेफरेंस। रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके। Reference as citations. If you want to write any research papers, then you have need to maintain the all these elements. Your research journey start now as first you have need to do action, goal and remembers also. So before close this, we have need to open a new tab on Chrome search engine as DeepSeek AI. So I have done in the sense, हमने पीपीटी को अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, हमें एक्शन लेनी है। एक्शन इन द सेंस हमें स्टार्ट करनी है रिसर्च राइटिंग के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग इट आई वांट टू नो फ्रॉम, मैं आप सबसे एक कंफर्मेशन चाहूंगा। आप लोग बोल दीजिए एक बार यस, और एक इसमें चैट बॉट ओपन होगा, एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। प्लीज राइट अ मैसेज एज अ रिस्पॉन्स यस। यस एक्शन सर। एंड यस आप लिखिए प्लीज। एक्शन एंड रिसर्च, प्लीज राइट अ मैसेज। Muskan Singh, please everyone mute yourself. Ankit, yes. Preeti Kumari, yes. Ramit, yes sir. Dear all, please all the सारे पार्टिसिपेंट से ए सिंपल सा इंस्ट्रक्शन समझिए या रिक्वेस्ट, आप सबको जो है यस लिख दीजिए प्लीज। फिर मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ओपन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम होगा DeepSeek AI। It's a simple interface of DeepSeek AI and it's a free AI tools. Using these AI tools, we can write our first research papers. और रिसर्च पेपर जो हम लोग लिखने जा रहे हैं तो लेटेक्स हमें आना चाहिए। तो लेटेक्स हमें नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉम्प्ट आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट बस आए तो बाकी सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमें लेटेक्स आने की जरूरत नहीं है, लेटेक्स में हम कोड को ही कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक यहाँ पे टाइटल
हमें सिलेक्ट करनी है, तो टाइटल हमें सिलेक्ट करनी है, तो मैं आप सबसे चाहूंगा कौन सा डोमेन का टाइटल हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। प्लीज राइट अ डोमेन हियर, एनीवन। क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर मूव ऑन किया जाए। यस सर। ओके, प्रशांत कुमार वर्मा, आपकी सेमेस्टर क्या है? 5th सेमेस्टर सर। ओके मिस्टर प्रशांत कुमार वर्मा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डोमेन जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में हमें टॉपिक टाइटल चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द डोमेन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। In the domain of quantum computing, I have right here we want to write my first research paper in the domain of quantum computing. So please give me a proper title for IEEE indexing. हमने पहले बोला था कि हमें IEEE के लिए पेपर, IEEE इंडेक्स में पेपर को पब्लिश करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वर्कशॉप को। इतने सारे हमारे पास में टाइटल्स आ चुके हैं, इसमें से किसी एक टाइटल को हमें सिलेक्ट कर लेना है। आज मैंने इसको सिलेक्ट किया, और ये टाइटल जो हमने सिलेक्ट किया है, ये टाइटल पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी पब्लिश नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइटल इज टू मच यूनिक। सो टाइटल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। टाइटल को कंप्लीट करने के जस्ट बाद में हमें इसको लिखना पड़ेगा यहाँ आकर के, हमें लेटेक्स में चाहिए। डबल कोट में हमें टाइटल को मेंशन किया। अब मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ we have need latex code for overlay. I have right here we have need latex code for overlay IEEE with 50 plus reference। I have mention here we have need 50 plus reference। रेफरेंस यहाँ पे जरूरी है। हमने बताया नहीं और आप लोगों ने पूछा नहीं, हमें रिसर्च पेपर में कितने पेज चाहिए होगा। ये फर्स्ट हमारी जर्नल पेपर्स हैं, तो एज ए बिगनर मैं आप सबको बताना चाहूंगा अराउंड 15 पेजेज होनी चाहिए एज ए बिगनर। पेजेज हमने 15 बोला। वी नीड टू ऑल्सो राइट द ऑथर डिटेल्स। तो हमें 2 लोगों का ऑथर डिटेल्स के तौर पे चाहिए। जस्ट आप लोग बताइए प्लीज। मैं बलराम का नाम मेंशन कर दूं क्या? हेलो बलराम, आर यू हियर? आइए मेंशन है बलराम कुमार, बीटेक सीएसई है ना आप? सिविल यस। जीसी त्रिपुरा।
ओके, एक और ऑथर का नेम चाहिए होगा इसमें एज ए सुपरविजर, तो एनीवन बताइए, मैं किनका नाम मेंशन करता हूँ। हेलो प्रियांशु, आर यू हियर? हेलो, चलिए मैं अंकित का नाम मेंशन कर रहा हूँ। अंकित आप यहाँ पे हैं क्या? यस सर। हेलो, ओके, तो अंकित आप बताइए आपका डिपार्टमेंट क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। ओके, ठीक है, मैं इतने डिटेल्स मेंशन करता हूँ और जस्ट हमें यहाँ पे इंटर क्लिक करना है। ये हमारे लिए कोड ऑलरेडी लेटेक्स में लिखना शुरू कर दिए हैं। लेटेक्स का कोड हमारे पास में अवेलेबल हो चुके हैं। आफ्टर डेट हमें एक और लॉगिन हमें करना होगा ओवरलैप के लिए। ये लेटेक्स पे ऑलरेडी मेरा आईडी है, इस आईडी पे मैं आ जाता हूँ। एक मैं यहाँ पे न्यू ब्लैंक फाइल कर देता हूँ। न्यू फाइल मैंने यहाँ पे कर दिया। जो टाइटल उन्होंने मेंशन किया था उस टाइटल को ही हमने यहाँ पे सेव कर दिया ताकि वो पता चले कि आसानी से वो हो जाए। आफ्टर नेक्स्ट हमें करना होगा ओके, एक कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के जस्ट बाद में मैं फिर यहाँ पे इस इंटरफेस पे आता हूँ। इस इंटरफेस पे आने के जस्ट बाद में इसको मैंने पहले एक बार कंपाइल करता हूँ ताकि पहले का जो प्रीवियस डेटा है वो डेटा लॉस्ट कर दें। अच्छा, इन्होंने इस डेटा को लॉस्ट नहीं किया। हमारे पास ऑप्शन है जी से पूरा का नाम सर ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कोड हमने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको हमने रिकम्पाइल किया। तो जो कोड हमने यहाँ पे मेंशन किया है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। टाइटल हमने यही लिखा था, इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द क्वांटम अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स ऑन नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम डिवाइस। हमने यहाँ पे अथर डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किया था। बलराम कुमार को ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो, देखिए तो यहाँ पे बलराम कुमार बीटेक सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा इंडिया। ईमेल आईडी ये आपका नहीं है, ये ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट यहाँ से ले लिया है। तो आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी आपको करेक्शन करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये जो बलराम कुमार का डिटेल्स आपको दिख रहा है इस ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे जो एडिट करना चाहेंगे आप एडिट कर लेंगे। जैसे आप लिखना चाहते हैं। आपका एक्चुअल ईमेल आईडी क्या है बलराम? हेलो, बलराम 13 2003। टाइप करिए मैसेज में, इसे विजिबल है नहीं, या बोलिए एक बार फिर से, मैं सुनना चाहूंगा। टाइप करता हूँ। सर लिख क्या? सर टाइप कर रहे हैं। ओके, प्लीज टाइप। ओके, आपने जो टाइप किया है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट में टाइप। हमने यहाँ पे कॉपी किया, मैं इस इंटरफेस पे आया। ये स्क्रीन तो विजिबल है ना मेरा? यस। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और जस्ट हमने इसको किया कंपाइल। जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी जो आपने बोला था यहाँ पे आ चुका है, बलराम 1362 जो आपने बताया था, हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया। बाकी अनिकेत सॉरी अंकित कुमार हैं, इनका डिटेल्स भी आप ऐसा ही इसमें जो चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपका अपस्टेक यहाँ पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है। एक बार मैं इसको डाउनलोड करना चाहूंगा ताकि आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको ओके। हमने जैसे इसको डाउनलोड किया तो ये जो है जस्ट वेट, इसमें क्या क्या मिसिंग है एक बार हमें देखना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है जिसे हमें अभी सही करनी है। जैसे आप देख लीजिए ये मशीन है, ये मशीन जो है हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कभी काम नहीं करता है, तो उसमें हमें प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आइए मेंशन है अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट आप हमने नहीं लिखा है, मशीन हमारे लिए लिख करके प्रोवाइड की है। आपको ऐसा अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, तो आप सिंपली अगर डॉग पे करेंगे तो आपको इसको इसका फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, इस फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, इस पैराग्राफ के बीच में कितना गैप होनी चाहिए, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन जैसे आप जो है एआई टूल्स का कुछ प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं तो बहुत आसानी से वो कार्य हो जाती है। तो आपको स्किल्स भी मीन्स जो ओरिजिनल स्किल्स है वो भी चाहिए होगा, प्लस उसके करस्पॉन्ड में प्रॉम्प्ट भी चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ कमी हमें जो दिखाई दे रही है। एज हमने बोला था रेफरेंस में हमें 50 प्लस चाहिए, बट यहाँ पे ओनली 7 रेफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्लस इसमें जो है कंक्लूजन डिस्कशन इसमें रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, बट आप देख रहे होंगे ओनली यहाँ पे 2 पेज का है, मीन्स 4 पेज का है। तो हमें 4 पेज का नहीं, हमें चाहिए 15 पेज का। तो 15 पेज के लिए हमें चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट में कुछ अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा प्लीज enhance the defense as more than more than 50 plus। I have right here more than 50 plus reference। आफ्टर नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, एंड the number of pages 15 प्लस। ठीक है, हमने यहाँ पे इतना मेंशन किया, फिर हमने यहाँ पे इंटर क्लिक किया। हेलो मिस्टर अभिषेक, आर यू हियर? हेलो मिस्टर अभिषेक, आरोही शर्मा, आर यू हियर? अर्पिता शर्मा, आयशा प्रिया, जितेंद्र कुमार, Yes, sir. डियर एज फॉर जस्ट आप सबको सर्टिफिकेट ही मिलेगी एज ए पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट। हमने कॉपी कर लिया है, अब मैं देखता हूँ कि क्या चेंजेस हो पाती हैं। ओके, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं एज यहाँ पे टाइटल जो हमने मेंशन किया था टाइटल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बलराम कुमार, अंकित कुमार, दो यहाँ पे अथर्स हैं। अथर्स में यहाँ पे एक पहले वाला अपना लिया है क्योंकि हमने जो चेंज किया था तो बाद में उसको अपने कोड को रिमूव कर दिया था, जिसके कारण से वो रिमूव हो चुकी है।
तो आप इसमें कोड में जो चेंज करना चाहेंगे आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सेम यहाँ पे abstract लिखने का है तो abstract यहाँ पे सेम है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहे हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आप सभी से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2, स्क्वायर ब्रैकेट 3, 4 एंड समथिंग लाइक दैट, ये आपको होता है नंबर्स ऑफ रेफरेंस। और जैसे ये नंबर्स ऑफ रेफरेंस की बातें करते हैं, हमने बोला था मोर देन 50 प्लस रेफरेंस, देन यहाँ पे हमारे पास में टोटल नंबर्स ऑफ रेफरेंस जो दिखाई दे रही है हमें 68 रेफरेंस दिखाई दे रही है। मीन्स व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस रेफरेंस? रेफरेंस जस्ट लाइक अ सिटेशन, सिटेशन जस्ट लाइक अ, जैसे हमें कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि सब मेरा ही कंटेंट हो, कुछ कंटेंट जो है हम किसी के रिसर्च पेपर से लेते हैं, ठीक है। तो रिसर्च पेपर, किसी के रिसर्च पेपर से लेते हैं तो उसको हमें एज ए रेफरेंस दिखाना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, हमने इस जर्नल से लिया है, उसका ऑथर ये है और ये बुक जो है उस टाइम पे पब्लिश हुआ था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और रेफरेंस लिखने का रूल्स होता है, और रेफरेंस आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपके जो है कॉपीराइट की बातें आ जाएगी। और यहाँ पे जो हमने अभी कंटेंट जितना लिखा है ये सब जो है प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट है। जस्ट इसको आपको डाउनलोड करके इसको आप पब्लिश करना चाहें IEEE के इंडेक्स पे, तो आपको IEEE पे जाकर के जस्ट आईडी बनाना पड़ेगा, फिर इसको अपलोड करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, आपको डिटेल्स मेंशन उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एज योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिटेल्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो IEEE पे खुद आप अपना आईडी बना करके और वहाँ पे इसको पब्लिश के लिए अपलोड कर सकते हैं। जैसे इसको आप अपलोड करेंगे वहाँ से आपको मेल आती रहेगी, और मानते हैं उसको रिजेक्ट करना है, कुछ अब चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स यू कैन मॉडिफाई इन योर रिसर्च पेपर एंड री अपलोड अगेन, मीन्स अपलोड अगेन। तो जस्ट एक रिसर्च पेपर ऐसे लिखा जा सकता है। आप लोग समझ रही है क्या? हेलो। यस सर। यस। ओके। ओके, वेरी नाइस। तो ये लेटेक्स पे जो काम करने की बात होती है, लेटेक्स जस्ट यहाँ पे हमने ओवरलिप का यूज़ किया, हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट आपको ओवरलिप के वेबसाइट पे जाना है, और आपको इसको वेबसाइट का चाहिए होगा, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ और मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप में, आपको देख लीजिए। ओवरलिप लेटेक्स, इट्स अ नेम ऑफ वेबसाइट्स। हमने जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के जस्ट बाद, ये तो सबको आता ही है, इसमें आप लोग एक्सपर्ट होंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस टेक्स्ट पे। बाकी हमने दीप्सी की आई का यूज किया है। डियर, आप सबको एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि जो है एक हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में सर्टिफिकेशंस के लिए आगे हम लोग प्रोसीड कर देते हैं। एप्लीकेशंस के थ्रू ही सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी, उसके लिए ग्रुप में आपको उसका इंस्ट्रक्शन अभी जस्ट हम लोग शेयर कर देंगे। ओके। So please turn on your camera, everyone, and also you can type your name in, आप लोग अपना नाम भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे। नेम आप सबको टाइप कर दीजिए, प्लस उसके बाद में कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। Okay, thank you everyone. If you have any queries related to this work, today's session, then you can ask me. We are here, and
Thanks for turn on your camera. You can turn off as your comfortability. Dear JC Sekura engineers, if you have any queries related to this work, related to research paper, then you can ask from us. We are here for you. हम सब, मैं मीन्स हमारी टीम यहाँ पे अवेलेबल हैं आप सबको रिसर्च पेपर में गाइड करने के लिए और रिसर्च पेपर कंप्लीट कराने के लिए। मुस्कान मैम आ रही है? सर ये वाला सेशन रिकॉर्डेड रहेगा? यस सर। क्या बोल रहे हैं बताइए फिर से सर। हेलो सर ये हेलो, सेशन रिकॉर्डेड रहेगा इस ऐप पर? क्या बोल रहे हैं सर? ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा? हाँ, ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पे ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसको मैं रिकॉर्ड Thank कर you, रहा हूँ, sir. ऑलरेडी सब रिकॉर्डेड है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो, कोई क्यूरीज, कोई टेक्निकल क्यूरीज आप लोग करिए। आप लोग कोई टेक्निकल क्यूरीज कर नहीं रहे हैं, और इसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं फिर फाइनल सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं। क्यूरीज किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आ सकता है। क्यूरीज आप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप जो है इसमें कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होगी। समझ आ रही है आप सभी को जो हमने बताने का प्रयास किया आप सभी को? यस सर। Yes, ओके, sir. थैंक यू, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, तो सेशन हमारी इतना ही पे हम ओवर करते हैं। एक बार आप लोग, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू We want to सर। conclude the sessions, and also थैंक from यू our team सर। members, thank you everyone. Thank you Mr. Jitendra Kumar. Also thank you to Nil Kamal and everyone. Shikha Priya, hello Shikha Priya, are you, आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट किए थे क्या? यस सर। गुड ओके ओके, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, थैंक्स एवरीवन, we should conclude the session. Thanks everyone. Thank you, sir. Muskan ma'am, you can close the session.